Assalamu alaikum, मेरे जवानों. I hope you guys are well. Assalamu alaikum, Zoya. How are you? Assalamu alaikum, Moiz. Assalamu alaikum, Shafi. Assalamu alaikum, Zirak. Assalamu alaikum, Rabia. Assalamu alaikum, Noor. Shafi, I'm well. How are you? Rishma, कैसी हो? Noor, assalamu alaikum. Ali, assalamu alaikum. Mashal, hello. How are you? Malika, assalamu alaikum. Ayan, assalamu alaikum. Areen, assalamu alaikum. Ramin, assalamu alaikum. Yusuf Arfat Ali, assalamu alaikum. Hadi, Anushe Hamayal, assalamu alaikum. Maryam, Zainab, assalamu alaikum. Fatija, assalamu alaikum. Really Moise, Shemayim, assalamu alaikum. Maryam, assalamu alaikum. Wali, assalamu alaikum. How is everybody? Arisha, you raised your hand. You have a question. No, sir. Okay, brilliant. Ayan, assalamu alaikum. Fatma, assalamu alaikum. Welcome to the class, everybody. All right, so let me share my screen very quickly with you. And get ready. चले मेरे जवानों स्टार्ट करते हैं. We're starting off with nuclear physics, which involves the story and the discovery of the nucleus. And for that, we begin with an experiment, which is the alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment. अयान, अब मैंने लास्ट क्लास में कहा था हमें 8 आवर्स सोना चाहिए. मेहदी अस्सलाम वालेकुम. हाँ, तो सोए तुम? Hamza, assalamu alaikum. No, we're just starting. We just wrote our heading, alpha particle scattering experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे जवानों एक डायग्राम बनाओ. ओहो, कितना खूबसूरत. और हाउ अबाउट वन सेकंड, क्योंकि डायग्राम इतना मुश्किल होगा बनाना, मैं आपको भेज दूंगा. हाउ अबाउट दैट? वुड दैट बी बेटर फॉर यू? वो इतना मुश्किल डायग्राम बनाने को आना तो है नहीं, उसको समझने के लिए आना है. सो I can send the diagram to you. How does that sound? Sounds good? Okay, brilliant. Okay, तो फिर मैं तुम लोगों को ये दिखा. So we're going to do the alpha particle scattering experiment, and this is the setup. I'll just show you the setup as well in real life. So you have what's the now? You have this thing, which is basically your alpha particle source. Alpha particles are radioactive particles. You have this gold foil, gold का बना हुआ है, जिसकी thickness है 10⁻⁻⁶ meters. You have a detector over here. This detector will basically detect the alpha particles. Alpha particles straight जा रहे होंगे, like fire करेंगे हम. जब वो इस गोल्ड फॉयल में से पास करेंगे ना, तो वो डिफ्लेक्ट करेंगे at different angles. So what we're going to do is we're going to rotate this detector from here to here to here. Do you understand the direction of the arrows?
सो मैंने अपने डिटेक्टर को यू रोटेट करना है, एंड जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट होंगे वो डिटेक्टर मुझे बता देगा कि अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। क्या आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ आ गया सबको? ऑलराइट, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। हाँ मेरी सबको स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन तो नजर आएगी, क्यों नहीं आएगी? गौर से देखना। ओके, सो कैन यू गाइस सी माय स्प्लिट स्क्रीन नाउ? The alpha particle source, which is over here, is this one. Okay, can you see the gold foil? This is the gold foil, ये है वो gold foil, ठीक। और इस गोल्ड फॉयल के बीच में ये गोल्ड का एक उसने एटम रखा है, ठीक है? समझ गए यहां तक? अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा पार्टिकल्स को यहां से फायर करेंगे टूवर्ड्स द गोल्ड फॉयल। सो ये देखो, ये लेजेंड यहां बना हुआ है। कैन यू सी दीज आर अल्फा पार्टिकल्स? कैन यू सी ऑल ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स? इनके मैं तुम लोगों को ट्रेसेस भी दिखाता हूं, ये देखो। दिस इज द एक्चुअल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मुझे बताओ, सो बेसिकली दिस गोल्ड फॉइल इज पॉइंटेड, यस ये वाला जो डब्बा है दिस इज योर गोल्ड फॉइल, उसने ये बाहर से आपको दिखा दिया, ये वाला डब्बा ये इधर बनाया हुआ है। हाँ, कैन यू सी दैट दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस गोल्ड एटम, एक्चुअली दे आर गेटिंग रिपेल्ड। देखो उसे दूर जा रहे हैं। इवन इफ मैं अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा भी देता हूं तब भी देखो करीब नहीं आते उसके। And can you see that they're deflecting at different angles? Can you see कि एंगल एक नहीं है, एंगल बहुत सारे हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई कि हमें यहां पे अपने डायग्राम के अंदर क्यों इसको रोटेट करना पड़ता है? बिकॉज बिकॉज ऑफ the different angles the alpha particles are going. Shumayam, that's exactly the question that the scientists had in their mind as well. Why is there repulsion? I can explain this. So अभी तो इफ्रा मैं सिर्फ अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने अल्फा पार्टिकल्स लिए और हमने उसको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका। जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को फेंका तो वो अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलेगी, आप देख रही हो सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आई विल पॉज दिस फॉर अ सेकंड एंड यू कैन सी दैट द अल्फा पार्टिकल्स दे डोंट गेट टू टच दिस गोल्ड न्यूक्लियस। In fact, they get deflected away from the nucleus, which shows that are they attracting or are they repelling? बताओ इफ्रा, यहां तक बात समझ आ गई? Are you clear with me so far? Okay. अब मुझे बताओ, जो गोल्ड का ये प्लेट है हमारे पास, क्या इसमें खाली एक ही एटम होगा या बहुत सारे एटम्स होंगे? हाँ जो मेरे साथ रहना, मैं बहुत आगे नहीं जाता अभी, जस्ट स्टे विथ मी, जितना मैं बताता हूँ उतना लेके चलते ताकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो। बहुत सारे, एक तो नहीं हो सकता, मल्टीपल होंगे। अब आई एम गोइंग टू शो दिस बाय दिस वे। सो दिस इज ऑल गोल्ड। अगेन ये सारी, ये देखो ये गोल्ड फॉइल को ही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और अब गोल्ड फॉइल के अंदर ये आपको छोटे छोटे नुक्ते नजर आ रहे हैं? कैन यू सी द स्मॉल डॉट्स? बताओ ये गोल्ड के अंदर ये क्या है? लेजेंड में देखो ये क्या चीज है। हाँ मैं भी बताऊंगा वाई आर वी यूजिंग गोल्ड। वाई आर वी यूजिंग गोल्ड का भी जवाब आएगा, वाई आर वी यूजिंग अल्फा का भी, सबका जवाब आएगा। बट अभी मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये किसके न्यूक्लियस है? ये किस चीज के न्यूक्लियस है मेरे जवानों? ये गोल्ड एटम के अंदर जो बहुत सारे एटम्स है, हर एटम का अपना अपना न्यूक्लियस है। ये बात समझ आती है?
सो बेसिकली हम गोल्ड के अंदर घुस गए, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जा चुके हैं, हमें पता है अब इस जैसे बहुत, ये एक एटम है, ये भी एक एटम, और ये जो इर्द गिर्द जो लाइनें बनी हुई हैं गोल गोल, ये क्या है भला, सोचो जरा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये वो शेल्स हैं जिसके अंदर कौन घूमता है, कौन घूमता है इनमें, कौन घूमता है इनमें? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सो अब आपको ये समझ आ गई कि हम गोल्ड के अंदर घुस चुके हैं, गोल्ड के एटम के अंदर चले गए हम, और एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट वन एटम। यू कैन सी दिस इज वन एटम, दिस इज अनदर एटम, दिस इज अनदर एटम, जितने न्यूक्लियस है उतने एटम्स हैं, और ये उन एटम्स के अंदर जो रिवॉल्विंग या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वो हैं। आर यू गाइस विद मी? सारे मेरे साथ हैं? चले जी, अब मैं फिर से अल्फा पार्टिकल्स को फायर करूंगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैंने अल्फा पार्टिकल्स को यहां से फायर किया था। गेट रेडी। So I fired the alpha particles. Let's see their traces. Let's raise their energy levels a bit. Okay. Now, do you observe that most of the alpha particles go straight? Like सीधे गुजर जाते हैं। कुछ होते हैं, ये देखो, जो करीब आता है वो रिपेल होके, जो करीब आता है वो रिपेल हो जाता है, जो करीब आता है वो रिपेल होता है, जो नुक्ते के जो करीब आते हैं, इस न्यूक्लियस के जो करीब आता है वो रिपेल होता है। अगर न्यूक्लियस से दूर है, ये देखो, ये न्यूक्लियस से दूर है, वो सीधा जा रहा है, जो न्यूक्लियस से बच गया वो सीधा चला जाएगा, जो न्यूक्लियस के करीब है उसको चपेट पड़ेगी। देखो, इसको चपेट पड़ेगी, ये जो इधर आएगा अभी अभी, ये देख, ये पड़ी। मजा आया कि नहीं आया पहली दफा? मुझे बताओ, ये जो चपेट देखने की मजा होता है ना यार, खाली खाने का मजा थोड़ी आता है, देखने का मजा आता है। अच्छा, अब गौर से सुनना। सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड that most of the alpha particles are going straight, but whichever alpha particle comes very close to this little thing over here, by the way, this thing, is it very big or very small, this dot? Very small. ठीक है। मारूफ ने कहा will some also rebound? मारूफ, प्रोबेबिलिटी है, ये देखो, जो उसके करीब आता है वो उसको टच तो नहीं करने देता, वो उसको उड़ा के फेंकता है दूसरी तरफ, जितना करीब आता है उतनी जोर से उड़ाता है उसको। डू यू अंडरस्टैंड? सो अब हम एक काम ये करते हैं, अब आप लोगों ने मेरे साथ इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस and I'm going to open my notes and let's write down a few things. शुगल का शुगल हो गया, अब जरा कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं फिर वापस आते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट की मेरे जवानों कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखो, और ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे। हाँ, अभी तुम्हें फातिमा समझ आएगी व्हाई वी रोटेट। फातिमा, तुमने देखा था ना कि दे वर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, सारे सीधे तो नहीं जा रहे थे ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो उनको पकड़े कैसे, बताओ, उनको कैसे डिटेक्ट करें? तो हमें अपना जो प्रोब है, जो डिटेक्टर है, उसको घुमाना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल गया या नहीं गया उधर। अगर हम प्रोब को ये व्हाट आर वी रोटेटिंग, द प्रोब, द हैंडहेल्ड प्रोब जो मैंने अभी तुम लोगों को दिखाई थी, ये चीज, वी आर रोटेटिंग दिस थिंग, द डिटेक्टर। आर यू गाइस रेडी विद मी? चलो, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, सवाल करने हैं। रुबाब, you're asking why sir, why are we rotating? Rubab, we are rotating because Rubab, can you see that my particles are going all over the place? So do you understand that I will not be able, अगर मैं अपना डिटेक्टर खाली इधर रखता हूं, मुझे बताओ, मुझे ये वाले मिलेंगे, मुझे पता चलेगा कोई अल्फा पार्टिकल इधर गया?
जो अल्फा पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं या जो इधर जा रहे हैं, मुझे बताओ उनको कैसे पकड़ूं? उनको पकड़ने के लिए अपने डिटेक्टर को घुमाना पड़ेगा ना मुझे। डू यू अंडरस्टैंड? In the diagram that I drew, aren't the particles going through the gold sheet? So can you see that this is the gold sheet and these are my alpha particles and they are passing through the gold sheet? और ये उसका डायग्राम बन रहा है, जब ये अल्फा पार्टिकल उस शीट के अंदर से गुजरते हैं, ये उस चीज को शो कर रहा है। आर यू विथ मी? हाँ जो सारे मेरे साथ हैं यहां तक? सब कोई बात समझ आ गई? ओके, अब चलो इधर से कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें सवाल इकट्ठे करते हैं, नोट्स में तुम लोगों को भेजता हूं। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, हाँ अल्फा पार्टिकल्स गो पास थ्रू द शीट, यस यस यस, दिस टॉपिक इज इन बोथ आईजीसीएसई नो लेवल। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि डिड यू ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight undeviated? Shafi, you'll know why the experiment is being done. अभी तुम्हें पता चल जाएगा। Did you observe, यहां पे देखो, that most of the alpha particles pass straight undeviated? देखें, हाँ, this happens only with the gold sheet। मैं बताऊंगा gold sheet क्यों यूज करते हैं, कोई और क्यों नहीं यूज कर लेते, नंबर वन। अच्छा, did you also observe that some alpha particles deflect through small angles? ये देखो, ऑब्जर्व करो, छोटे एंगल, ज्यादा ज्यादा डिविएट नहीं, कम, थोड़ा सा, ये करीब से जो गुजरता है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा यूं हो गया। And did you observe that very few deflect through greater than 90 degree? ये देखो, जैसे जो बहुत करीब आता है ये इक्का दुक्का ही होता है। ये देखिए, सारे सीधे जा रहे हैं, अभी एक आएगा जो करीब आएगा, वो जो बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन शो करे वो बहुत कम है। क्या ये तीनों ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं आपको सबको? आयान, अब्दुल्ला, अबीहा, हाजरा, आर यू ऑल क्लियर ऑन द ऑब्जर्वेशंस? मिना, सिद्रा, जोया, ओके। अब मेरे जवानों, इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। ऑब्जर्वेशन कर ली, अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाई आर द अल्फा पार्टिकल्स गोइंग स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ देम? व्हाई? बिकॉज कैन यू सी that the atom is mostly empty? अगर कोई एटम उठाओ, ये एक एटम है, तो देखो ये एटम ज्यादातर खाली है, इसकी ज्यादा स्पेस खाली है। इस एटम को देखो, इसकी ज्यादा स्पेस खाली है, छोटे सा न्यूक्लियस है को बीच में, लेकिन ज्यादा इसकी जगह खाली। वेकेंट का मतलब एम्प्टी। कैन यू गाइस सी कि एटम की ज्यादा जगह खाली है? सारे सब जवानों को समझ आ रही है? जीरक, so do you guys understand why most of the particles pass straight undeviated? Because the atom is mostly empty, majorly vacant. Now, do you guys also understand that some alpha particles deflect through less than 10 degrees? कुछ alpha particles हैं जो ये वाले जो करीब आते हैं, they deflect through less than 10 degrees, मतलब छोटी deviation, छोटी। इसको देखो, इसके करीब जो आता है वो छोटी deviation करता है। वो क्यों करता है? What's the conclusion from there? बताओ ज़ैनब, what's the conclusion from there? The conclusion is कि इनके बीच में रिपल्शन हो रही है या अट्रैक्शन हो रही है? जो अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस है। जी अरीशा बताएं, बताओ। Sir, when we say कि atom majorly vacant है, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर कुछ भी नहीं है। हाँ, There's खाली nothing है, found. खाली जगह है। Sir, but still electrons तो होते ही है ना atom में हर जगह। हाँ, अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर मैसलेस। आप बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भारी होता है, गोल्ड का न्यूक्लियस उससे ज्यादा भारी होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो मैस, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे खड़ी थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिनिंग। सो इलेक्ट्रॉन्स के होने या ना होने से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड? Okay, sir. Understood. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सो लाइट। एक छोटा सा बच्चा वो चक्कर काट रहा है ना, वो रुक रहा है। बड़ा सा हाथी आप गुजार रहे हैं उसके बीच में से, बताओ हाथी को पता चलेगा कि बीच में से कोई चूंटी घूम रही है? इतना फर्क है No, sir. लिटरली अल्फा पार्टिकल और हाथी के बीच में, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यस फरीन, कैन यू सी ओवर हियर? फरीन, मैं इसको पॉज करता हूं, ये देखो,
Fareen, can you see that this is deflecting? Can you see that this was deflecting? Can you see that this is deflecting? मैंने pause किया, अब देखो गौर से. Deflections नजर आ गई तुम्हें? ये अल्फा पार्टिकल सीधा नहीं जा रहा, मुड़ गया. ये सीधा नहीं जा रहा, मुड़ गया. ये सीधा नहीं जा रहा, ये मुड़ गया. ये यहां से मुड़ता हुआ है क्योंकि इसके करीब गया होगा. सो अब हमें समझने की जरूरत है कि ये क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहली चीज मुझे बताएं कि जी इनके दरमियान में अगर ये डिफ्लेक्शन है तो क्या ये अट्रैक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है या रिपल्शन की वजह से हो रही है? रिपल्शन की वजह से हो रही है. एंड व्हाट डज दैट टेल यू गाइस? अल्फा पार्टिकल्स तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज है. हमने अल्फा पार्टिकल को यूज इसलिए किया, हमें पता था पॉजिटिवली चार्ज है. मुझे बताओ इससे न्यूक्लियस के बारे में क्या पता चला? क्या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? So somebody asked me what is the purpose of this experiment. इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये पता ही नहीं था. इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये पता ही नहीं था. हाजरा मैं इधर हूं, मेरे साथ रहना, मैं नीचे नहीं गया. इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है. न्यूक्लियस का साइज कितना होता है. न्यूक्लियस, हमजा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अभी तुम थोड़ी केमिस्ट्री भूले हुए हो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड. रिमेंबर दिस, लिख लेना कहीं पे, आगे जाके और भी डिटेल में समझाऊंगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? सही है. अब जो तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, बहुत से सवाल पूछ रहे हो, उसके जवाब भी लिखते जाना. जुनेद ने मुझसे पूछा है व्हाई डोंट इलेक्ट्रॉन्स कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. Electrons are very light. Electrons are extremely light particles. अब मैं अपने ड्राइंग बोर्ड निकालता हूं. सो सबसे पहली हमने ऑब्जर्वेशन क्या लिखी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने लिखी that most of the alpha particles, write this down, most of the alpha particles pass straight undeviated. ये मैंने तुम लोगों को दिखा दिया. फिर मैंने तुम लोगों को दिखाया that some alpha particles deflect through small angles. And the third observation that you made was very few alpha particles, बहुत ही कम, very few alpha particles deflect through large angles. Are these three observations clear? Yes or no? Fatma Nasir, can I have you on the mic? Can you ask me your question on the mic? हाँ, फातिमा मैं तुम्हें माइक पे आओ, माइक पे आओ. ये प्लीज लिख लो ताकि आप लोगों के पास कुछ हो लिखने को, ताकि हम खाली हवाई बातें ना करते रहे. वैसे आपको नोट्स में दे दूंगा, बट लिखते रहा करो साथ साथ. Sir, can you hear me? जी हाँ. Sir, जी my फातिमा, question was that the alpha particles, they're deflecting because of the force of the nucleus, right? So the nucleus, the force of the nucleus is also like holding the electrons together. So like it has a strong force. And if all of the alpha particles are like passing through the atom, shouldn't they all deflect? Like the ones who are close, they should deflect like strongly, and the ones who are like far, they should like deflect like weakly, maybe. ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है ना, तुम्हारे न्यूक्लियस का साइज बड़ा है या छोटा है? Small. तो न्यूक्लियस का साइज अगर बहुत छोटा है तो उसका इफेक्ट बहुत दूर तक होगा या उसके करीब करीब होगा? करीब करीब. हाँ. सो जो अल्फा पार्टिकल तुम्हारे न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन कोई अल्फा पार्टिकल अगर दूर है तो वो सीधा पड़ जाएगा. बट सर वो जो शेल्स हैं तो वो तो दूर हैं, तो उसके तो अंदर जो शेल्स, इलेक्ट्रॉन, बेटा वो इलेक्ट्रॉन भारी है, लाइट है. लाइट. तो हल्की चीज को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, कम फोर्स चाहिए होती है? कम फोर्स. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन की लॉजिक और अल्फा की लॉजिक, अल्फा लाइट है या हैवी पार्टिकल है? हेवी पार्टिकल है. तो मुझे बताओ, हैवी को
डराने के लिए या धक्का देने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए होगी. ज़्यादा force चाहिए होगी. So do you understand why the same logic does not work for both? Yeah, I understand. Okay, brilliant. Guys, are you with me? Zoya, I think you noticed something. सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? शुमाय ने मुझसे पूछा, I had a question regarding, अच्छा अब शुमाय बाद में, अभी पहले इस टॉपिक को मुकाएं. Most of the alpha particles pass straight undeviated. मेरे जवानों, इसका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन बताएं. अब मैंने अभी आप लोगों को पढ़वाया, अभी आप लोगों को चीटिंग कराई है मैंने, कंक्लूजन बताया. बताओ क्या कंक्लूजन है इसका? बताओ फातिमा, क्या वेकेंट है? मैं वेकेंट हूं? कहे हमारा दिल वेकेंट है, खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है जिंदगी में करने को. एटम वेकेंट है. एटम इज मेजरली वेकेंट. वो देखो, कह दिया ना मैंने, दिल की बात कर दी. एटम इज मेजरली वेकेंट. दूसरी, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स. इसका क्या मतलब है? ये क्यों हुआ है? क्यों वो यूं करके गए हैं? अल्फा पार्टिकल्स, अरीन, हमें पहले से ही पता पॉजिटिव चार्ज है. एटम के बारे में क्या पता चला? कि एटम के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस which repels the alpha particles. याद रखो, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. इट्स नॉट द डिस्कवरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल हमें पहले से ही पता था पॉजिटिवली चार्ज है. सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. हमने न्यूक्लियस को पहली दफा पहचाना इस एक्सपेरिमेंट के. वो चीज है जो अंदर पड़ी हुई है एटम के, जो अल्फा पार्टिकल को इधर और उधर फेंक रही है. और इससे तुम लोगों ने रिलेट किया कि हमें वो घुमाना पड़ता है डिटेक्टर. अब समझ आई कि डिटेक्टर घुमाते क्यों है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हर जगह जा रहे होते हैं. तो उनको पकड़े कैसे, उनकी पिक्चर कैसे लें? डू यू अंडरस्टैंड? इट्स जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड क्या है किसी ने जिंदगी में? अब मुझे बताएं, अल्ट्रासाउंड प्रोब को दोनों तरफ घुमाते हैं या नहीं घुमाते, या एक ही तरफ पकड़ के रखे रहते हैं अगर कोई चीज चेक करनी हो अंदर? घुमाते हैं ना, घुमाते हैं ताकि हर जगह से हम डिटेक्ट कर सकें. डू यू अंडरस्टैंड? अल्ट्रासाउंड अंदर जाती है, घूम के वापस आती है बॉडी में से, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए वी मूव द प्रोब ऑल ओवर द बॉडी. एक जगह पे पकड़े खड़े रहेंगे तो दूसरी जगह इमेज ही नहीं आएगा हमारे पास, इसलिए घुमा के उधर लेके जाते हैं, इमेज आए दूसरी तरफ का भी. क्लियर हो गया? अब आओ तीसरी बात पे. क्या आप लोगों ने यहां पे ऑब्जर्व किया कि बहुत कम थे अल्फा पार्टिकल्स जो जिन्होंने बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन शो की? बताओ अयान, बताओ ओमामा, ओमामा ऑन द माइक. Did you observe those alpha particles which showed a very large deflection? वो कौन थे? वो कौन थे जिनको बड़ी जोर की चपेट पड़ी थी? The alpha particles which came very close to the nucleus. ऐसे ही है ना? वो बहुत कम थे क्योंकि न्यूक्लियस ही अब इतना सा है, तो उसके करीब आने के चांसेस भी कम होंगे. डू यू अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस भी एक नुक्ता है. याद होता ना, न्यूक्लियस भी कोई बड़ा जिन होता तो उसके पास से जो गुजरता वो उसको चपेट लगाता, बट वो छोटा सा डॉट है. सो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जो गलती से उसके करीब आता है उसको जरा चपेट पड़ जाती है. सो ये जो आखिरी हमारी ऑब्जर्वेशन थी ना मेरे जवानों, दैट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू लार्ज एंगल्स, उसकी वजह ये है दैट द न्यूक्लियस इज चार्ज्ड. ये तो हमें पहले पता चल गया था, न्यूक्लियस इज चार्ज्ड and it contains most of the mass of the atom. इतनी जोर की चपेट कैसे पड़ गई? चलो न्यूक्लियस तो एक डॉट है, डॉट के बहुत करीब भी आ जाओ, बहुत करीब भी आ जाओ डॉट के. मुझे बताओ, डॉट के अंदर कोई चीज होगी जो उसने रख के मारा होगा? यस और नो? या डॉट खाली था अंदर से? ये बताएं. डॉट
के अंदर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि पूरे एटम का सारा मास अल्लाह ताला ने उस नुक्ते में डाला हुआ है, जिसकी वजह से जब ये अल्फा पार्टिकल इसके करीब जाता है, पहले उसको हंस रहा होता है कि क्या छोटी सी चीज है, क्या करेगी मेरे, जैसे ही उसके करीब जाता है ऐसे रख के उसको पटाखा मारता है, उड़ता हुआ जाता है वो दूसरी साइड में, फिर उसको ख्याल आता है ओए ओए ये तो बड़ा बड़ा हैवी था ये। डू यू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने जो एटम का सारा मास है, मोस्ट ऑफ 99% मास, वो एक न्यूक्लियस के अंदर डाला हुआ है। और न्यूक्लियस इतना सा है, इतना डॉट है वो बना, मैं अपने मैं ये डॉट बनाऊं, न्यूक्लियस इससे भी छोटा है, न्यूक्लियस इससे भी छोटा है। आपको पता है न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज लिखो, कि न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 14 meters। समझ तो, 10 to the power minus 14, और 0 पॉइंट को 14 जीरो लगाओ फिर 1 आता है, 0.14 जीरो के बाद 1, 0.00000000, इतना छोटा है, और उसके अंदर सारा मास ऑफ द एटम पड़ा है। इस वजह से जब वो अल्फा पार्टिकल उस नुक्ते के करीब जाता है तो पटाख करके उसको पड़ती है। इज इट क्लियर एवरीवन? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कमाल हो गया ना फिर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर हम एक एक बात ऑब्जर्व करें, और बल्कि तुम लोगों के मैं सवालों के कुछ जवाब देना चाहता हूं यहां पे, कि हमने यहां पे गोल्ड क्यों यूज किया? गैस यस, अल्फा, मैं नोट में लिखता हूं, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप भी लिखें, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। लिख लिया सबने? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात है, लिखो कि हमने गोल्ड यूज किया। लिखो, गोल्ड इज यूज बिकॉज इट इज मैलिएबल। मैलिएबल समझते हो? मैलिएबल का मतलब, गोल्ड इज यूज बिकॉज इट इज मैलिएबल। मैलिएबल सॉफ्ट, सो सॉफ्ट का मतलब क्या है? इट कैन बी हैमर्ड, यस और नो। उसकी शीट बन सकती है, फॉइल बन सकती है, उसकी थिन फॉइल बन सकती है। इसलिए गोल्ड यूज किया गया था, क्योंकि इट इज मैलिएबल, हेंस इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन, can be easily broken down into sheets. If alpha particles avoid, यूसुफ ने एक सवाल किया, अल्फा पार्टिकल्स, पहली बात है हमारी बॉडी में से अल्फा पार्टिकल्स नहीं गुजरते, जब आप जिस रेडिएशन की बात करें वो गैमा रेज होती हैं, ठीक है? But sir, can't other metals also be hammered down? Yes, they can be hammered down. They can be. गोल्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड बहुत डेंस है, नंबर 1, और दूसरा मैलिएबल भी है। Got it? अब can another reason be because no insulation और कंडक्शन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। अच्छा, अब आपका अगला सवाल ये था कि डिटेक्टर को मूव क्यों करते हैं? सो डिटेक्टर इज मूव्ड, देखो, डिटेक्टर इज मूव्ड so that it can display the flashes observed when alpha particles are scattered at different angles। ये बात जरा सुनने वाली है।
बात सुनने वाली। Detector is moved so that it can display the flashes observed when alpha particles are scattered at different angles. So जो डिटेक्टर होता है ना, बनाओ डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर के सामने हमने एक पेपर यूज किया होता है या एक फॉइल यूज की होती है, which produces flashes when alpha particle strikes it. So जब भी कोई अल्फा पार्टिकल से, ये एक अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है, इसको स्ट्राइक करता है, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल इसको स्ट्राइक करेगा ना, इस पेपर को, तो उसके ऊपर लारेब एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन में एक फ्लैश प्रोड्यूस हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ फ्लैशेस आर प्रोड्यूस्ड? So you don't need to know the detail of this, you just need to know कि वो जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है इस फॉइल को, इस शीट को, इसके मटेरियल ऐसा होता है कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है और उस एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में फ्लैश प्रोड्यूस होती है। तो जब फ्लैश नजर आएगा उसका क्या मतलब है? अल्फा पार्टिकल पकड़ा गया है, यस और नो? जब फ्लैश नजर आ गया इसका क्या मतलब है? अल्फा पार्टिकल पकड़ा गया। ओके, अब आप मुझे बताएं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये लिख लिया सबने यहां तक? यहां तक लिख लिया सबने? कैन आई मूव ऑन? नीचे जा सकता हूं? ओके, गौर से सुनिएगा। सो दिस वाज योर चेंबर। ये बीच में, बताओ इसका नाम, ये क्या चीज है जो मैंने बीच में रखी है? इसका नाम बताएं। दिस इज अ थिन गोल्ड फॉइल। शाबाश। अब मुझे बताओ, ये यहां पे जो मैं चीज बना रहा हूं, ये क्या चीज है जिसको फायर करेंगे हम? ये क्या चीज है? दिस इज द अल्फा पार्टिकल सोर्स। सारे मेरे साथ। और ये जो चीज बना रहा हूं, ये क्या है? दिस इज द डिटेक्टर। और इस डिटेक्टर को हम यूं घुमाएंगे, ऐसे ही है ना? डोंट वरी, somebody was saying can you please go back, don't, इसकी रिकॉर्डिंग आती है, इसलिए वीडियो की भी रिकॉर्डिंग आती है, सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, ताकि अगर आपका कोई काम मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। वैसे आपको नोट्स ही मिल जाएंगे इसके, ठीक है? अब मुझे ये बताओ मेरे जवानों, अगर अल्फा पार्टिकल्स इधर से निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्लैशेस कहां पे प्रोड्यूस होनी चाहिए? जब डिटेक्टर किधर हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लाइन है और मैं इससे एंगल मेजर कर रहा हूं थीटा। ये एंगल बनाई जी थीटा, ये डायग्राम बनाए, और मुझे ये बताएं मैक्सिमम फ्लैशेस कितने एंगल पे प्रोड्यूस होंगी? मैक्सिमम फ्लैशेस कितने एंगल पे प्रोड्यूस होंगी? ये थीटा मैंने बता दिया, थीटा कहां से है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। मैक्सिमम फ्लैशेस किधर प्रोड्यूस होंगे? 45 पे, बिटवीन 10 एंड 90। अच्छा, सवाल लिख लिया सबने? हैव यू ऑल रिटन, हैव यू ऑल रिटन आउट द क्वेश्चन? लिखो जल्दी से बात। आप लोग, बाकी लोग जरा जाके ऑब्जर्वेशंस तो पढ़े। सवाल है ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम फ्लैशेस आर प्रोड्यूस्ड एट व्हाट एंगल? यहां पे मैंने 0 डिग्री बनाया हुआ है, ये लाइन बनाई हुई है, और इसकी, इस लाइन के रिस्पेक्ट से हम ये एंगल मेजर कर रहे हैं। सो यू कुड गिव एनी आंसर, यू कुड से 0, 90, 180, व्हाटएवर आंसर यू वांट। जाके ऑब्जर्वेशंस पढ़ो और ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पढ़ो। व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 1? बताओ जैनब, जैनब उस्मान ऑन द माइक।
ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या थी? जोया अतर, जोया शायद, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या, पढ़ के सुनाओ। कि majority of alpha particles pass straight undeviated. Majority of alpha particles pass straight undeviated. So क्या मतलब है इसका? कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं, ज्यादातर, मेजॉरिटी। तो सबसे ज्यादा फ्लैश किधर आने चाहिए? आसमान में, इधर। कहां पर नजर आनी चाहिए? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इधर जा रहे हैं, आप Straight. अपना डिटेक्टर इधर रख के बैठ जाएं तो हाँ जी, बट चिप्स खाते हैं ना उसके बाद फ्लैश कोई नहीं आएगा। Shabash. Do you understand? Maximum flashes will be observed at 0 degrees. Are you guys with me? क्योंकि ज्यादातर मेरे जवानों अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेट अनडिविएटेड, वो जाके हिट करेंगे उस वो फॉयल के ऊपर, फ्लैश प्रोड्यूस होगा, हम फ्लैशेस पढ़ लेंगे, हम फ्लैशेस देख लेंगे। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? अच्छा, और उसके बाद 0 डिग्री के बाद लेट से तुम यहां से नीचे जाते हो तो फ्लैशेस बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? हाँ, अच्छा जी, जीरा कहता है बिटकॉइन। जीरा माइक पे आओ, रेज योर हैंड। जीरा क्या कंफ्यूजन है बताओ जी, जीरा बताएं। जीरा की आपने ऑब्जर्वेशन लिखी थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अनडिविएटेड। कैन यू हियर मी जीरा? Here you go. You have the mic. Can you hear me? जल्दी से बताओ बच्चे। Yes, sir. So मुझे बताओ, अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को जीरक इधर से फायर कर रहा हूं, where will most of the alpha particles go? बताएं। Straight. स्ट्रेट। ये किस एंगल पे गिर रहे हैं? ये क्या एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे? 0 degree. तो मुझे बताओ, डिटेक्टर को इधर होना चाहिए मैक्सिमम फ्लैशेस के लिए या इधर होना चाहिए? 0 degree. डिटेक्टर ने पकड़ने ना फ्लैशेस। Yes, sir. तो डिटेक्टर को आसमान में होना चाहिए या 0 डिग्री पे होना चाहिए फॉर मैक्सिमम फ्लैशेस? Sir, 0 degree. तो अब बताओ कंफ्यूजन क्या? Okay. सर वो आपने लाइन क्या? ये सॉरी, ये लाइन जी सर. Yes, sir. ये लाइन मैंने से ये दिखाया कि एंगल मैं यहां से यूं मेजर कर रहा हूं, थीटा। सो एंगल ये डिटेक्टर इधर भी हो सकता है तो उस टाइम पे एंगल ये हो जाएगा, ये डिटेक्टर इधर भी हो सकता है उस टाइम पे एंगल ये हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर हाउ डिड यू मेक द एंगल? ये क्वेश्चन में गिवन है अरीशा, सो यू विल नॉट हैव टू मेक इट योरसेल्फ, ये एंगल इस तरह गिवन है। मशल कहती है स्ट्रेट लाइन एंगल 180 नहीं होगा। बिल्कुल मशल 180 किधर होगा? जब मैं 0 इधर लिख रहा हूं तो 180 इधर होगा ना। उसने 0 जब लिख दिया मशल, तो आप क्या बोलोगे, 0 या 180? उसने यहां पे 0 लिखा हुआ है तो आप भी 0 बोलेंगे। और 0 डिग्री के बाद मुझे बताएं फ्लैशेस बढ़ेंगे या कम होंगे बियॉन्ड 0 डिग्रीज? शाबाश। सो याद रखो कि अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं जिसके ऊपर हम लिख लें नंबर ऑफ फ्लैशेस ऑन द वाई एक्सिस, नंबर ऑफ फ्लैशेस ऑन द वाई एक्सिस, एंड वी राइट द एंगल ऑन द एक्स एक्सिस। लेट्स से ये है 0, ये है 45, ये है 90 और ये उसके आगे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्लैश किधर होने चाहिए? सबसे ज्यादा 0 पे होना चाहिए। शाबाश, आ गई थी सबसे ज्यादा 0 पे। और उसके बाद फ्लैशेस कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और ये ग्राफ कुछ यूं बनता है। इट्स लाइक एन एक्सपोनेंशियल डिके कर्व लाइक दिस। इज इट क्लियर? वेरी फ्यू फ्लैशेस बियॉन्ड 90 डिग्रीज। डज इट मेक सेंस? क्लियर हो गया सबको? चले जी, क्वेश्चन हो जाए फिर पता चल जाएगा मुझे कि आप लोगों को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ गया है कि नहीं आया। करें क्वेश्चन फिर? तैयार हैं आप? रेडी? ओके, लेट मी गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस। Sir, but can't this graph, the gradient, the line be straight? Why is it like curve? बिकॉज उसकी वजह यह है कि वो जो नंबर ऑफ फ्लैशेस है ना वो लिनियरली चेंज नहीं होते।
वो okay. नॉन लिनियरली चेंज होता है, दैट्स व्हाई। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। यस यस बिल्कुल। चले जी, पहला सवाल, गेट रेडी। Here you go, guys. First question. I'll give you guys a poll as well. वली, उमैमा, सिद्रा, शिफा, शाफे, रुबाब। रुबाब तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी? Rahimin, are you clear? Mashal, Mariam, are you guys clear? Kaniz? Acha, and as always, you guys don't need to make any of these pictures because I'm going to send these pictures to you in your WhatsApp groups. तुम लोग WhatsApp group जब जाके देखोगे तो तुम लोगों को वहां पे ये नजर आते रहेंगे, ठीक है? माशाल्लाह कितने सारे WhatsApp ग्रुप में भाई, किधर किधर भेजा मैंने। हो गया जवानों? नहीं, 30% ऑफ यू आर डन। जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? गुलविश, Aryan, Aryan or Aryan, how do you pronounce your name? अस्सलाम सर। Assalamu alaikum. सर How do you pronounce आर्यन। it? Aryan. Aryan आपने मतलब अलिफ आर्यन, को आर्यन का सर। मतलब क्या होता है? सर बहादुर, या क्या बादशाह बात को है, भी बोलते हैं। ओ तेरी खैर। अच्छा जी। तो बादशाह बता फिर, क्या जवाब है इस सवाल का? सर मुझे लगता है कि इसका जवाब ए है। आपको क्या लगता है मेरे जवानों? बादशाह को सही लग रहा है? हाँ बताओ बादशाह। सर क्योंकि आपने बोला था कि क्योंकि वो जितना न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा वो मतलब उसकी डिविएशन कम होती रहेगी, जो तो हमारी जो एक लाइन है वो न्यूक्लियस से दूर है तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी, जो न्यूक्लियस से करीब है वो डिविएट हो जाएगी। हाँ, बट यू गाइस एग्री विद बादशाह? तो बहादुर भाई इज करेक्ट। ओके, देखें देखें, शाबाश, आई एम वेटिंग। 50% ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड। जल्दी करो, शाबाश। मैं तब तक बादशाह का आंसर चेक कर लूं कि बादशाह भाई ने आंसर सही बताया गलत बताया। हाँ जी, 60% of you are done, and I'll tell you the answer now. The answer is not A, बादशाह। गौर से सुनना, ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरा, ये डिफ्लेक्ट कर गया, समझ आती है। सी को पहले देखते हैं, सी को पहले देखते हैं। ये भी उसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी उसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। बताएं, ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? इज सी पॉसिबल? यस और नो? नो। क्या ये कोई हॉलीवुड की मूवी शूट हो रही है जिसमें ये गोल्ड न्यूक्लियस यहां से घूम के, ये अल्फा पार्टिकल घूम के यहां से यू निकल जाए? ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर बी था। C is not possible because they're both deflecting by the same amount. How can they deflect by the same amount? Their distances are different. Their deflections should be different.
this one should deflect less, this one should deflect more. अब गौर से सुनना, ए में ये उसको बिल्कुल सीधा गुजार देता है. मुझे बताएं इन दोनों के बीच में क्या गैप बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? हाँ ज़ैनब, यस ज़ैनब, आंसर माय क्वेश्चन. ये इन दोनों के दरमियान में कोई गैप बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? तो मुझे बताएं जब ये इसको ये फोर्स फील हो रही है और ये गैप छोटा है, तो क्या इसको वो फोर्स नहीं फील होगी रिपल्शन की? कम फील होगी, लेकिन फील तो होगी ना, बिकॉज इसको फील हो रही है जो उसके साथ है बिल्कुल. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द आंसर इज बी बॉल? यस, न्यूक्लियस इज स्मॉल, 100%. Nucleus is small. Is this guy feeling the force? Yes or no, Zainab? He is, right? So if he is feeling the force, जो बिल्कुल उसके साथ वाला है, should that also feel the force? Yes or no? याद होता ना, मैं यहां बनाया होता, यहां पे yes, it passes straight, क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट ही नहीं होगा, वो दूर से गुजर गया. Do you understand? Because ये दोनों करीब हैं, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों पे इफेक्ट होगा, इस पे कम और इस पे ज्यादा. इसलिए मेरे जवानों इसका आंसर था बी बॉल. फातिमा ने कहा कि डी क्यों नहीं हो सकता? डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फातिमा ये कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? ये बताओ, कैन अल्फा अट्रैक्ट टुवर्ड्स गोल्ड? तो फिर क्लियर हो गया सबको? अब टीम बादशाह एंड द रेस्ट रेडी फॉर अनदर क्वेश्चन? एक और सवाल कर ले जाने से पहले, छक्का लगा दें प्लीज, मुझे खुश कर दें. मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं. ओ मिल जा, सवाल किधर चला गया? बादशाह का नाम ही और सवाल ही गायब हो गया. हाँ लो जी, जवानों, दिस इज द क्वेश्चन. कोई बंदा मुझसे पूछ रहा था कि आपने एमसीक्यू की ऑप्शन देते हैं, ए बी सी डी ई तक आप क्यों दे देते हैं? मेरी मर्जी. मेरा सवाल ये, आप लोग ई क्यों सिलेक्ट करते हैं? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए. और कोई ना कोई क्लास में होता है जो ई सिलेक्ट करता है. ये देखो अभी कर लिया किसी ने, वो चेक करो. इसको तो इसके साथ वो होनी चाहिए जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत करीब गुजरता है ना, वो होनी चाहिए इसके साथ, दो के साथ होनी चाहिए. I know. I'm kidding. Yusuf, I know. आओ जी जल्दी करो, शाबाश. Hurry up. Last 1 minute. You've got a minute to win it. Quick. खत्म हो गया. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया आपने एक क्लास के अंदर. माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए. You guys have finished. Literally killed the whole experiment. जी मेरे जवानों, वेल डन, शाबाश. इसका जवाब सी था. इसका जवाब सी है. Do you guys understand? Because yes, nucleus does contain protons and neutrons. There's no doubt. There's no doubt. But is that a conclusion of this experiment? क्या आपने जितने कंक्लूजन लिखे हैं मुझे बताएं, कहां पे हमने कहा कि जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? So it's not relevant to this experiment. Do you guys understand? Well done, guys. Amazing work. You guys are done with the alpha particle scattering experiment. I'll send you the notes and inshallah, we'll pick it up from this point in tomorrow's class. Amazing, amazing, amazing. You guys have your conversations in your groups now, okay? नमाज का भी टाइम हो रहा है, मेरा निकलना है. खुदा हाफिज, टेक केयर. कोई सवाल किसी का हो तो वो प्लीज मुझसे ग्रुप में पूछ लो या कल क्लास में पहले पूछना, ठीक है? Sir, चले. just a Yes. thing.
Sir, just a thing. In ninth grade, Ravi was saying that you slayed. And I said that if you were a Gen Z, then you slayed. But yeah, new batch called you slayed. Acha, this is the new term, right? Slay. I've slayed Yes, it. sir. All right, perfect. That is it. Thank you so much, everybody. Have a great day. Go slay. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Take care.